Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to do exercise 3.5 class 10th mathematics. If you have not subscribed my channel, please subscribe it to get all the solutions of NCERT book, and don't forget to press the bell icon to get regular updates. For best SST and English videos, yes, you can subscribe PCA online classes, and I have given the link in the description as well as I have given on the I button. So in our question number 2, we have for which values of a and b does the following pairs of linear equations have an infinite number of solutions. Okay, so infinite solution के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी हैव a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So this is the condition for the infinite solution. Now we have to check what is a1 here. a1 is 2 and a2 is a minus b. So we can write 2 upon a minus b is equal to b1, means 3 upon a plus b. So we will take only these two, and then we have to cross multiply them and get the linear equation. So once we cross multiply them, we get 2 into a plus b and 3 into a minus b. So here we can cross multiply and get, in the next step we get 2 into a plus b is equal to 3 into a minus b. 2 into a and b will be 2a plus 2b. 3 into a minus b will be 3a minus 3b. This implies 3a को हम इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 3a हो जाएगा, एंड प्लस 2b and plus 3b equal to 0. So yes, we will get here minus a plus 5b equal to 0, and this is our first equation. After getting this first equation, let us take the another situation. तो अगर दूसरी सिचुएशन क्या है कि b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 है ना. हमने क्या किया, पहले हमने ये वाला पार्ट लिया, इससे एक इक्वेशन फाइंड की, एंड देन आई एम टेकिंग दिस पार्ट b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, राइट. सो नाउ b1 is 3, b2 is a minus b, so we can write it as 3 upon a plus b is equal to minus 7 upon minus of 3a plus b minus 2. अगर हम इस पूरे को शिफ्ट करेंगे तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो इसलिए हमने लिया माइनस 3, माइनस पूरे के ऊपर माइनस आएगा 3a प्लस b माइनस 2, और ये 7 को भी अगर हम शिफ्ट करेंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस 7. नाउ इसे सॉल्व करने के लिए माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया, ठीक है. अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो वंस वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट वी गेट 3 3 ज़ा 9a प्लस 3 इंटू बी 3b, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b. ओके, सो 7a इधर आके माइनस हो जाएगा. Yes, we can have 9a minus 7a plus 3b minus 7b equal to 6. So your equation will become 2a minus 4b equal to 6. अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो हम इसे पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, एंड देन वी विल गेट a minus 2b equal to 6. Here we have two equations. We will find the value of a from the first equation, and then we will put this value in the second equation, right? Now when we put the value in the second equation, we get 5b minus 2b equal to 3. That means 3b equal to 3, and the value of b will be 3 upon 3.
So here we will get the value of b as 1. Okay, then put this value in a equal to 5b. So the value of a will be 5 from here. तो हम यहाँ पे सिचुएशन इनफाइनाइट के लिए जो सिचुएशन है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, उसका यूज करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर सेकेंड पार्ट वी हैव फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation has no solution. तो no solution के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है? For no solution we have a1 by a2 equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2. a1 by a2 is 3 upon 2k minus 1. That will be equal to b1 by b2. That is 1 upon k minus 1. Okay. Now we have to solve this to find the value of k. So here in this question I have written a1 a2 की वैल्यू लिखी, b1 b2 की वैल्यू लिखी. देखिए b2 की वैल्यू क्या है, y का जो कोफिशिएंट है वो b2 की वैल्यू है. सो k minus 1 is b2 here. Now the value of c1. c1 के लिए जब आप इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा -1. तो हम c1 की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे -1, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं. देन c2 की वैल्यू क्या होगी? c2 की वैल्यू के लिए भी हम जब इस पूरी टर्म को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, -2k + 1. सो इसके लिए भी हम लिखेंगे -2k + 1. नाउ कंडीशन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2. इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. a1 by a2 a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2. सो a1 by a2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम वैल्यूज ले लेते हैं a1 by a2 की एंड b1 by b2 की. यस, सो इट विल बी 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1. So in the next step let's cross multiply and get the value. So we will write on cross multiplication. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 3k minus 3. यहाँ पे 3k से मल्टीप्लाई हुई ये वैल्यू एंड देन उसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई. सिमिलरली यू विल गेट 1 से अगर हम 2k minus 1 को मल्टीप्लाई करें सेम आएगा. वी कैन राइट इट एज 3k minus 2k इज इक्वल टू -1 plus 3. इट विल बी k इक्वल टू 2. सो ये k की वैल्यू आ गई यहाँ पे. तो जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या था, b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो b1 by b2 के लिए हम b1 की वैल्यू रखते हैं. b1 की क्या वैल्यू थी, 1. b2 की k minus 1 इज नॉट इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -2k + 1. तो मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये तो हमने फाइंड कर लिया, क्या नहीं होनी चाहिए ये भी हम फाइंड करेंगे. सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 2k + 1. 2k + 1 इज इक्वल टू k minus 1 नॉट इक्वल टू k minus 1 एंड दिस विल बी सॉल्व एज इट इज 2k minus k इक्वल टू -1 -1. So k will not be equal to -2. This is the second value we will get. Okay, this is the second value we will get. So this is our solution for question number 2 second part, and let us see what is given in the next part now. So let us do question number 3. Solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication method. So let us do this question. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पहले आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 को लिखना होगा. तो यहाँ पे देखते हैं a1 क्या है, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, a2 3, b1 होगा 5, b2 होगा 2, c1 -9 लेना है आपको और c2 को -4 लेना है, क्योंकि जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना इक्वेशन को, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x + b1y + c1. तो c1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -9 हो जाएगा. सिमिलरली इस इक्वेशन को भी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे
it will be 3x plus 2y minus 4 equal to 0. Now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू राइट x, y एंड 1. फिर मैंने आपको बताया था कि आपने कभी ना कभी कैब से ट्रैवल किया होगा, तो यहाँ पे हमें कौन सी कैब लेनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, हमें लेनी है b कैब. b कैब दैट मीन्स आपने पहले वैल्यू कौन सी रखनी है, b1 b2 की वैल्यू सबसे पहले रखनी है. ओके सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे b1 b2 की वैल्यू लेंगे. yes you have to take 5 and 2, so just write 5 and 2 here. now c कैब, c के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, c1 c2 की वैल्यू. बस ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था. so c1 c2 की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे -9 and -4. then a is written here, that means we have to take the value of a1 a2. so a1 a2 will be, yes it will be 8 and 3. एंड लास्ट में फिर से b1 b2 की वैल्यू रखनी है. सो b1 b2 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 5 and 2. now we have to write x upon, just cross multiply these, 5 4s are -20 minus 2 9s are -18 equal to y upon, cross multiply 9 and 3, -27, then minus 4 8s are -32 equal to 1 upon 8 2s are 16 minus 3 5s are 15. so once you solve it, what you will get, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 plus 18. yes so we will write it. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x upon -20 plus 18 is equal to y upon -27 plus 32 equal to 1 upon 1, and it will be x upon -2 is equal to y upon 5 equal to 1. अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने इन दोनों को लेना है. वी कैन राइट इट एज, हमें इसको और इसको लेना है. हाँ, x upon -2 equal to 1. so x will be equal to -2. this is our value of x. then you have to take this thing, y upon 5 equal to 1. so y is equal to 1 into 5. so value of y will be 5 from here. ठीक है, तो ये हमारी x और y की वैल्यूज आ गई. नाउ ये तो था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सो नाउ वी आर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, फर्स्ट और सेकेंड. ठीक है, सो यस वी विल राइट x इज इक्वल टू 4 minus 2y 4 minus 2y upon 3. और इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यस वी विल पुट दिस इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2, ठीक है. तो इक्वेशन 2 में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3. सो इंस्टेड ऑफ x वी विल पुट द वैल्यू, then it will be plus 2y equal to 4. ठीक है, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 5y इक्वल टू 9. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट विल बी 8 4 32 माइनस 8 2 16y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 9. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट 32 माइनस 16y 3 5 प्लस 15y अपॉन 3 इक्वल टू 9. मतलब हमें इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ा, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके जब हम करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 15y.
In the next step we will get 32 minus y upon 3 equal to 9, and we can write it as 32 minus y equal to 9 3s are 27. Though minus y will be minus 27 plus 27 minus 32, so minus y will be minus 5. तो दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 5 आ जाएगी. तो y की वैल्यू यहाँ 5 है, और इस y की वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करूँगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 upon 3. It will be 4 minus 10 upon 3, that is minus 6 upon 3. और ये वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे x की भी वैल्यू आ गई -2. तो मैंने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया. डोंट वरी, आप इसको अच्छे से सेपरेटली लिख लीजिएगा नीचे स्टेप में. सो ये हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड था. सब्सटीट्यूशन मेथड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपने अगर पूरा सब्सटीट्यूशन मेथड देखना है, यस यू कैन गो टू द आई बटन एंड चेक. And thank you for watching this video. If you have not subscribed my channel, subscribe it for best upload of NCERT solutions, and press the notification bell to get all the regular updates. Thank you so much for watching. Don't forget to like the video.